in a huge relief for over 40,000 home buyers of Amrapali, Supreme Court has given a landmark judgment today. It has clarified that all projects of Amrapali Group that were registered under RERA will now be cancelled. Also, Enforcement Directorate has been told to initiate proceedings against the company and its promoters. Now, while criminal proceedings are going on and the Amrapali promoter is already in jail, it's a big relief for the home buyers because the Supreme Court has given certain directions to NBCC to take over the projects, unfinished projects, and complete them. They have clearly directed that no extra loan will be taken for the construction by the company, and only an 8% commission will be charged by NBCC to construct these projects. Now, this is a big relief for the buyers who've been fighting for a very long time and have taken this fight from all sorts of forums all the way to Supreme Court. Congratulations to all of you. We have mostly the Amrapali home buyers over here and also some people who've been fighting for consumer rights, home buyer rights for a very long time. Ma'am, very congratulations. First of all, I would like to know in what capacity are you working for the home buyers, and today's judgment, what kind of relief does it bring for you? देखिए मैम, आज बहुत ही खुशी का दिन है और हम लोग पिछले करीब 8-9 सालों से लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घर की जो लड़ाई है पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं और पहले ये लड़ाई जो थी हमारी सड़कों पे होती थी, प्रोटेस्ट करते थे हम लोग। जो हमारे MP MLA हैं, अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या नोएडा अथॉरिटी हो, उनके दफ्तर के हम चक्कर लगाते थे, लेकिन हर जगह से जब थक हार गए, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला और सिर्फ झूठे वादे मिलते गए। फाइनली 2017 दिसंबर में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हमें निश्चित तौर पे आज जाकर ये सफलता मिली है। काफ़ी खुशी का दिन है हम सभी आम्रपाली फ्लैट खरीदारों के लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें हमारा घर मिल जाएगा। चलिए, there is a lot of faith in NBCC. They have earlier also proved it that they have taken over stressed projects and completed them. Do you have hopes with NBCC? Because there were certain complaints also that the quality is not that good when they're finishing the projects. But for people like you who've been waiting for their homes for such a long time, I guess the fact that you'll get a key, that will be a huge relief. And what kind of faith do you have on NBCC? बिल्कुल, देखिए NBCC जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद यही है कि अब वो पीछे भाग नहीं सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम ऑर्डर आया था 1 साल पहले, जिसमें छोटे छोटे को डेवलपर्स को लाया गया था, वो लोग बैकआउट कर गए। अब कम से कम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी एजेंसियां पीछे नहीं हटेगी और उनको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। तो हमें काफ़ी उम्मीद है, राहत भरा आज का जो फैसला आया, हम सभी लोगों को एक उम्मीद जगी है कि हमें हमारा घर मिलेगा। And have you paid most of your money, or you are still some money is left over to be paid? बिल्कुल, मेरा तो अभी कुछ पैसा बाकी है, बट हमारे ऐसे बहुत सारे लोगों हैं जिन्होंने लगभग अपना सारा पैसा दे दिया हुआ है। बट ठीक है, अगर हमें पैसे देने पड़े तो हम लोग देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। So the court has directed that any balance payment that has to be made will be made to the Supreme Court and will be kept in an escrow account, which the NBCC will access only for the construction purposes. Alok, what do you think? How this will impact other projects, other stalled projects in other companies, because there are many cases going on. It's really a landmark judgment for a common person. मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ये फाइट अभिषेक एंड इसकी टीम ने शुरू की तो मैं सोचता था कि वाकई ये कानून के पचड़े में ना पड़ जाए सारा मामला और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही ना हो कि इसमें जजमेंट दे तो कैसे दे, क्योंकि भाई कैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई किसी एक आदमी को ये बना दो और ये अधूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो। बट ये रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल टीम। मुझे लगता है कि ये जजमेंट से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बिल्डरों को एक डर तो, भय पैदा तो हो ही जाएगा कि भाई अब तो हमें काम करके देना पड़ेगा। इवन अथॉरिटी ऑल्सो, आज इस पहली बार इस जजमेंट में इतना क्लियर कर दिया गया कि अथॉरिटी एंड बैंक जिसका कोई स्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हर बार अथॉरिटी का एक अलग प्रेशर, बैंक का अलग प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा होने की तो कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आती। तो मुझे लगता है कि अब पूरी जजमेंट भी आ गई है, थोड़ी देर में पूरी जजमेंट देखे जाएंगे कि क्या है, क्योंकि मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें जो लोग एक्चुअल कल्प्रिट हैं, उस समय के डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO, उस समय के डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे जो स्टेट के हैं, या CM,
जो लोग एक्चुअल कल्प्रिट है, इस सारे जो मेस है इसके बिहाइंड अगर सीन देखा जाए तो ये लोग सबसे बड़े सूत्रधार हैं इस पूरे कल्प्रिट के, सारा मेस के। तो वो अगर उसके बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो या कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसी बैठी हो, ठीक है, बिल्डर को तो जेल में डाल ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और लोग को भी के ऊपर कुछ बोला है, लेकिन जिन लोगों ने मेस क्रिएट किया है उनके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा होगा तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छी पहल होगी मेरे ख्याल। So the court has stated that any personnel who has benefited from this entire proceeding should be paying the amount for the construction, and they should be depositing that amount. And I think they're also pointing towards the authorities, maybe even the position holders in the authorities. This probably might be the first time that the authorities will be held liable for what they have done. एक्चुअली 2009 में जो अलॉटमेंट हुआ था उससे पहले जब लैंड अलॉटमेंट की पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी। इस पॉलिसी के अंदर में ये हुआ कि 10% आप पेमेंट दीजिए, उसके बाद लैंड अलॉट होती है। करप्शन जो सारी के सारी मायावती जी के टाइम पे इस टाइम पे शुरू हुई थी, पूरी पॉलिसी चेंज हुई थी। ये सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट में भी आया था कि आपने 10% पेमेंट के ऊपर लैंड कैसे सारी के सारी अलॉट कर दी, उसके ऊपर में बैंक भी उस 10% पेमेंट के ऊपर में रीशेड्यूलिंग होती गई एंड में आके अल्टीमेटली जो है बाहर जाके फंस गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला गया कि आप किस चीज़ का वेट करते थे 10 साल तक, कि आप इसका वेट करे थे कि आपका जो ड्यूज है वो 50,000 करोड़ हो जाए, उसके बाद प्रोजेक्ट है वायबल रहेगा। ये सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ के IAS ऑफिसर, जो है यहाँ के पॉलिटिशियंस और यहाँ के जो बिल्डर्स हैं, सब के सब करप्ट हैं, इनके अगेंस्ट में जरूर एक्शन होना चाहिए। So, as he was saying, despite repeated defaults by Amrapali of their payments to the authority was not taking any action. In fact, now they went to the court and they said, we are also an aggrieved party because we are not getting our interest payment. But the question remains, they did allot a lot of land to Amrapali. You also had a home in Amrapali. What kind of problems you have faced till now? And today, do you feel that you have got some relief? देखिए 2010 में हम लोगों ने घर खरीदा था, 2012 में घर में बात थी कि हमें पोजीशन मिल जाएगा। जब 2012 में हमें घर नहीं मिला तो हमारी संस्था नेफोवा ने लगातार रोड पे हम प्रदर्शन कर रहे थे। जो सरकार थी प्रदेश में, हम उनसे भी अपील कर रहे थे कि आप हमें हक दिलाओ, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं था। थक हार के 2017 में हम कोर्ट मूव किए। सुप्रीम कोर्ट में हम समझाने में कामयाब रहे हैं कि एक बहुत बड़ी नेक्सस है जिसमें बैंक, प्राधिकरण और बिल्डर तीनों शामिल है इसमें। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट सिर्फ अम्रपाली घर खरीदार के लिए नहीं है, देश में उन सभी घर खरीदारों के लिए है जो इस सिंडिकेट और इस नेक्सस से पीड़ित हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राज्य सरकार को भी बोला है कि आप इस नेक्सस को तोड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि नेक्सस का ही शिकार है। आप समझिए 95% में पेमेंट कर चुका हूँ। हमारे एसोसिएशन में कई ऐसे लोग हैं जो घर के इंतजार करते करते गुजर गए। कोई कैंसर से गुजर गए, कोई चाहते थे हमारे गृह प्रवेश में मेरे माता पिता आ जाएं, किन्हीं के माता गुजर गए, किन्हीं के पिता गुजर गए। ये आप समझिए ये बहुत बड़ी एक क्राइम भी हुआ। How long has been the fight? ये फाइट हम लोग मोर देन 10 ईयर्स ये फाइट हम लोग ने किया। अभी हो सकता है आगे और भी चले। सुप्रीम कोर्ट का तो एक तो फर्स्ट स्टेज पे हमें पहली पायदान पे हम खड़े हैं कि आगे हमें जहाँ कुछ भी नहीं था हम किस डायरेक्शन में जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें पहली पायदान पे लाके खड़ा करा है। निश्चित तौर पे हम आगे भी इसी तरह से लड़ेंगे और एक एक घर खरीदार को जब तक घर नहीं मिल जाएगी हमारी संस्था उनके लिए लगातार खड़ी रहेगी। And it's a humongous task because you have to understand there are about 42,000 home buyers who did not get their homes, and this job has to be taken over by NBCC. It is an issue of capacity building also. How much can they actually make? We have another home buyer here. Do you feel that finally this might set a precedent or sort of set up an example for the other builders and other home buyers to take, other builders to understand they cannot get away with it, and home buyers to take their fights forward? Yeah, definitely it's a milestone judgment, and it will set a milestone for other builder also. It's a really a very good decision and we are welcoming it. So, और आज के डेट में जो सबसे बड़ा जजमेंट ये है कि इसमें अथॉरिटी जो मेन कल्प्रिट है, आज हमारे लिए इशू क्या था, प्रोजेक्ट वायबल नहीं था आज के डेट में, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद अथॉरिटी के जो लैंड ड्यूज थे उसको मिला दे तो कोई भी प्रोजेक्ट आम्रपाली के अभी वायबल नहीं थे। अब अथॉरिटी का एक डिसीजन है कि अथॉरिटी का जो पेमेंट है वो अभी इस प्रोजेक्ट से नहीं लिया जाएगा। तो मेजर ये है, बैंक भी अभी इसमें कोई
क्लेम नहीं कर सकता, और एनी टाइप ऑफ अदर स्टेक होल्डर वो भी इसमें क्लेम नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट अब वाइबल है, और इसमें हमारे लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जब भी फ्लैट्स मिलेंगे रजिस्ट्री के साथ मिलेंगे, विद कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे लिए एक वेलकम है। लेकिन मेन जो इशूज है कि अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा इसमें एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये हमें आगे देखनी होगी सबसे बड़ी चीज़। That is one big question. How is it going to be executed? But I would just like to say this, that Supreme Court has given a landmark judgment, and we are hoping that not just the Enforcement Directorate or other investigating agencies, not only will they take action against the culprits here, but also NBCC will deliver on the promise of delivering homes to these people who have been waiting for a very, very long time. This may be the first step, but this is the most important step. From Greater Noida Tech Zone 4 with Mohammed Mursalin, this is Anjali Istwal for NDTV.